Hi guys, so welcome to the first episode of the Nida Photo Show. So today we have someone very special with us. She is basically a female entrepreneur, marketing and a advertising expert. She is a co-founder of Proworkly, which is basically a freelancer, aggregator platform. And she, Freelancer marketplace. yes, exactly. And she is someone who is Yeah. very passionate about business and entrepreneurship. So hi Nancy, welcome to the first episode of the Nida Photo Show. So how are you Thanks feeling? for thanks for featuring me. First of all, I'm feeling good, and this is my also my first live session with you, and I think I'm very grateful for you that you are featuring me. Okay, so Nancy, can I shoot my first question to you? Yeah, sure. Okay, so first of all, my first question to you would be I'm very eager to know your, the Insta profile name. I mean, it's very Yeah. unique, and I want to know the Yeah. meaning also. Like, what made you actually think of keeping that name, and what is it actually? If you Yeah. can First of pronounce all, it's also. I don't yeah, know yeah. how to pronounce it. The pronunciation is the Sanyo Show girl. Okay. I really love this word because this word I've learned actually I've just learned this word in my college. So Mm-hmm. मैंने जब ये वर्ड सुना मुझे काफ़ी पसंद आया तो मुझे लगा कि अब इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं तो क्यों ना Mm-hmm. कुछ यूनिक किया जाए राइट Mm-hmm. क्योंकि नेम से तो हर कोई बनाता ही है Mm-hmm. और मेरा जो पहला नैन्सी मेरा जो नेम है वो मैंने अपनी पर्सनल अकाउंट का इंस्टा बनाया है बट Okay. मैंने सोचा कि अगर पब्लिक बना रहे हैं तो फिर कुछ यूनिक करते हैं सो Mm-hmm. दैट्स वाई आई चूज द नेम एंड या आई रियली लव दिस नेम इसका मीनिंग क्या दिस है? नॉट द रीज़न सैनुशो मीन्स सेंटर ऑफ अटेंशन Oh, सेंटर that's ऑफ great. अटेंशन या Great. और आप हो भी सेंटर ऑफ या अटेंशन actually. थैंक यू Okay. थैंक यू Welcome. And okay, so my next question would be, I want you to tell the audience, like, about your background. I mean, like, where are you from and what's your educational background, etc. Actually, I'm from Lucknow and Mm-hmm. I have done my graduation from Amity University. I have done Mm-hmm. biotech. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने MBA किया है बट नो आई एम नॉट MBA ग्रेजुएट मेरा Mm-hmm. बस बिजनेस से पैशन है बट मेरा Mm-hmm. बायोटेक जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था उससे कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है Mm-hmm. बिजनेस का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है बट मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट आ गया बस एक्चुअली पिछले एक Mm-hmm. साल से मैं बिज़नेस लर्न कर रही हूँ खुद से ही पढ़ रही हूँ बिज़नेस के बारे में Mm-hmm. और जो भी मैं पढ़ती हूँ वो लोगों से शेयर करती हूँ जस्ट बाई Mm-hmm. मेकिंग वीडियोज़ एंड सम Mm-hmm. feed also Instagram feed also Mm-hmm. so it was just my passion you can say Mm-hmm. and this is the only reason for choosing business. Okay, great. Okay, Yeah. so my next question would be, you are the co-founder of ProWorkly.com, right? So I just Yeah. want you to tell about, the viewers about your startup, like what services do you provide and do you have a team currently or no? Like how is it? Yeah. Yeah, currently we have a team of four. Mm-hmm. Proworkly.com is actually freelancer marketplace for web development. Like अगर आपको वेबसाइट की कोई सर्विस चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं और फिर आपका काम हो जाएगा मैंने अभी रिसेंटली फ्री वेबसाइट का प्रमोशन किया था जो कि मैंने सोचा कि कुछ अलग करते क्योंकि हर कोई सर्विस देता है बट कुछ अलग नहीं होता है ना मेरा हमेशा ये होता है कि क्यों ना कुछ वायरल किया जाए लाइफ में मतलब हर कोई कर रहा है आजकल सेंटर ऑफ अटेंशन बनना इतना आसान काम नहीं है तो क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं जिसको मतलब लोगों को पसंद भी आया तो मैंने फ्री सर्विस स्टार्ट की कि फ्री सर्विस देते हैं सिंगल पेज वेबसाइट बनाते हैं और फिर अगर आपको पसंद आता है तो फिर आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं तो मेरा बेसिकली यही था और proworkly.com पे काफ़ी कुछ फ्रीलांसर्स अभी मैंने रखा है तो अभी मैं बेसिकली वर्क कर रही हूँ उस पर कि मैं उस पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कर रही हूँ तो मार्केटिंग चल रही है वेबसाइट की फ़िलहाल तो और बस यही है और मेरी को फाउंडर है मैं उसके साथ काम कर रही हूँ और फ्रीलांसर वे टीम ऑफ 4 एक्चुअली Okay. दैट्स ऑल Okay. So you या said you have a free team of four. Like, when did you या actually, when did it actually click कि मुझे ऐसा कुछ शुरू करना है और, all these things. या When did it happen actually? सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी आई थिंक इट्स बीन फॉर मी इट्स बीन अबाउट 1 ईयर जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया क्योंकि मैंने पिछले साल जब स्टार्ट किया था तो फिर मैंने कुछ और ही स्टार्ट किया था मैंने ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया था horizon.com जो कि आई थिंक सेल नहीं हो पाई थी फिर मुझे बंद करना पड़ा था तो उसके बाद मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट की सोशल मीडिया सर्विसेज लोगों को देती थी फिर अभी मैंने 1 महीने पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया है क्यों ना हम लोग फ्रीलांसिंग सर्विस स्टार्ट करते हैं एक्चुअली आपने ये सुना होगा फाइवर के बारे में सुना होगा राइट हाँ जी, हाँ जी. तो फाइवर में मैंने सोचा कि फाइवर मैंने बहुत रिसर्च किया कि लोगों को क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो मैंने खुद रियलाइज़ किया कि फाइवर पे हम जब जाते हैं तो कोई भी फ्रीलांसर जब होता है तो हम उससे मतलब बात नहीं कर पाते ठीक से राइट
अगर हमें फ्रीलांसर हायर कर मतलब अगर किसी फ्रीलांसर को हायर करना है तो फिर वो जस्ट वो बहाने बनाता है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं होता ना। तो मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई दी कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो मेरी वेबसाइट पे ये खासियत ये है कि जैसे कोई अगर किसी को वेबसाइट सर्विस चाहिए तो वो टेलीग्राम पे बात कर सकता है, टेलीग्राम के थ्रू कॉल भी कर सकता है, और फाइवर पे कॉल का सिस्टम नहीं होता है। तो मुझे लगा कि अगर कॉल का सर्विस देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी को वेबसाइट सर्विस चाहिए है ना, तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है। तो अगर किसी को वेबसाइट सर्विस चाहिए तो फिर वो कॉल कर सकता है। तो आई थिंक मैंने जितना मुझसे हो पाया अभी तक, तो मैंने उतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, और आगे भी तो मैं यही कोशिश करूँगी। Okay. That's very interesting, Nancy, and I wish you all the best for that. And my next question would be like, when I actually visited your profile for the first time, I found you very interesting, in solving this business related issues. Like, I just want to know, how did you actually develop that interest? Yes, I need to get into this thing and I need to solve this business related issue, etc. आई वुड लाइक टू से अगेन दैट्स लॉन्ग जर्नी। मैंने 1 साल पहले स्टार्ट किया था, तो फिर बस वही है कि मैंने जब Horizon.com स्टार्ट किया था तो मैंने अपना जो पेज है वो बनाया था जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ Horizon.com ई-कॉमर्स स्टोर प्रमोशन के लिए। फिर मुझे धीरे इंटरेस्ट आने लगा बिज़नेस की तरफ, मेरा ज़्यादा शिफ्ट होने लगा, मैं ज़्यादा इंक्लाइंड होने लगी बिज़नेस की तरफ कि मुझे लोगों को शेयर करना है। तो मैंने देखा कि और सारे लोग भी क्या क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने देखा कि आजकल इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। आजकल लोग सब कुछ शेयर कर रहे हैं, IGTV के थ्रू शेयर कर रहे हैं, जो भी उनका नॉलेज होता है, जो भी उनकी लर्निंग्स होती हैं वो शेयर कर रहे हैं, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करती हूँ वही चीज़, है ना। और मेरे पास जो लर्निंग है, मैं बेसिकली बहुत से बुक्स पढ़ती हूँ, तो बिज़नेस के ऊपर जो भी मेरी लर्निंग्स है बुक्स के थ्रू, या मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ इसके ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, तो मैं वही सब लोगों से शेयर करती हूँ। और यूट्यूब का भी मेरा यही था कि मैं यूट्यूब के थ्रू अपनी मार्केटिंग भी कर सकती हूँ, प्लस मैं लोगों से शेयर कर सकती हूँ। तो बस यही है मेरा कि बिज़नेस में मेरा इंटरेस्ट बस यही था कि मैंने एक बार मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा कैट पे तो नहीं हो पाया, बट मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट ज़रूर आ गया। ओके, सो लाइक दैट आपने कुछ डिसाइड किया था, वहाँ से आपका अल्टीमेटली यहाँ पे आना हुआ। बहुत लाइक दैट वो ट्वीक हुआ वहाँ पे। Okay. So, Nancy, just tell me, what is your opinion on importance of social media marketing in actually today's day and age? So, what do you think? सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई थिंक मुझे नहीं लगता था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है 1 साल पहले तक, जब मैं सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करती थी ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग सिर्फ फ़ोटो शेयर करते हैं, लोग सिर्फ एक दूसरे से कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो फिर बस वही था सोशल मीडिया में, मुझे कोई आइडिया नहीं था सोशल मीडिया मार्केटिंग का। बट 1 साल से मैं जब सोशल मीडिया पर हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। एक्चुअली ये मतलब जैसे पहले होता था कि हमको अगर टीवी पे आना है तो हमको मीडिया को कांटेक्ट करना पड़ता था, बट अब जैसे आप देख रहे हो कि लोग हमें देख पा रहे हो, तो हमें किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को टीवी न्यूज़ चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग जब चाहें तब लोगों के सामने आ सकते हो, अपने व्यूज़ अपने शेयर कर सकते हैं। और बस वही है कि अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग आगे चल के मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड होने वाला है, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए लोग पे करने के लिए तैयार हैं। मैंने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग किया था तो फिर बहुत सारे मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिले थे जो कि मुझे बहुत सारे पैसे देने को तैयार थे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तब मुझे इसका पोटेंशियल समझ में आया कि ये पोटेंशियल बहुत हाई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। दैट्स ऑल। Okay, so great. Okay, so there's a question, like I just wanted to know personally, are you someone who is like, are you an organized person? So by this I mean to say, are you someone who actually, like to keep the things in an organized way? Let it be a professional or personal life. No? No, I don't think so कि मैं इतनी ऑर्गेनाइज हूँ, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोग को लगता है कि शेड्यूल बनाना अच्छा होगा, बट आई नेवर फॉलो शेड्यूल। आई कांट इवन फॉलो, बिकॉज मैंने 1000 से ज़्यादा शेड्यूल बनाए, बट मैं कभी फॉलो नहीं कर पाती। इसीलिए मुझे लगता है मैं क्या करती हूँ ना कि बस एक छोटा सा पेज लेती हूँ, उससे मुझे जो भी डेली के काम होते हैं बस आई राइट डाउन एंड जस्ट टिक मार्क कि मैंने ये काम कंप्लीट किया है कि नहीं एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सो बेसिकली टू डू लिस्ट बना लेते हो आप और उसके हिसाब से आप अपना कर लेते हो। ओके, ग्रेट। सो मतलब हर एक दिन का आपका टू डू लिस्ट रेडी रहता है कि आई नीड टू कंप्लीट दीस टास्क इन दिस डे। नहीं, मुझे बस ये होता है ना कि मैंने एक बना रही है, मेरा रोज़ का वही काम है। ब्लॉग, मेरा एक इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है और ब्लॉग हो गया। बस ये 4 चीज़ें, और भी कुछ चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, तो वो मेरे रोज़ की हो जाती हैं बस, और कोई शेड्यूल मेरा नहीं होता है। ओके।
सो नैन्सी, आपको पता है कि ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में बहुत सारे कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, राइट? देयर आर सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पीपल आउट देयर, डिजिटल मार्केटिंग आजकल तो हर एक लोगों के नाम के आगे डिजिटल डिजिटल लगा हुआ है ना? देयर इज अ कंपटीशन Yeah. ऑब्वियसली. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दैट वन ट्रुथ व्हिच जो एक्चुअली कोई बोल नहीं रहा है रिगार्डिंग दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, अकॉर्डिंग टू यू? One thing जो अभी I कुछ don't think रिवील नहीं so. हुआ है, या फिर यू थिंक दैट दिस इज द थिंग व्हिच एक्चुअली द ऑडियंस शुड नो एंड दिस एक्चुअली no one has spoken about, I can say in this way. Yeah. Yeah, I'm understanding what your question is, but I think ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप काम को किस तरह से लेते हो. क्योंकि अगर आपको बिजनेस या किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस पानी है, तो फिर वो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से कर रहे हो. लाइक जैसे गैरी वी का आपने नाम सुना होगा, जी जी. तो उनके पोस्ट वायरल I क्यों follow होते हैं? him क्योंकि उनके also. पोस्ट में या आई ऑल्सो फॉलो हिम. दैट्स आई एम सेइंग कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि उनका पोस्ट आई थिंक इसलिए वायरल होता है कि उनकी पोस्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. तो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि हम लोग नहीं कर सकते. हम लोग भी कर सकते हैं, बट उसकी जर्नी कितनी थी, वो कितने 2006 से 2007 से आई थिंक वो काम कर रहे हैं. बहुत टाइम हो चुका है उन्हें काम करते रहते, राइट? तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है जो कि ये बिजनेसमैन छुपाते हैं या फिर हाइड करते हैं. देयर इज़ नथिंग लाइक दिस. ये सिर्फ आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है. एंड आई डोंट बिलीव ऑन लक, बट सम टाइम इट हैपेंस, मे बी. आई डोंट थिंक सो. ओके, यू डोंट बिलीव ऑन लक? या 0.1% कभी कभी हो जाता है, 0.1%. कभी मौके पे चौका लग जाता है, लाइक दैट. या Okay, fine. So my next question would be like, you are a co-founder of Proworkly and you have a lot of things to do. You need to also see ki, is this running currently in a smooth way or no? So how many hours in a day do you work? आई डोंट काउंट एक्चुअली आवर्स, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ना कि मैंने टू डू लिस्ट बना देती हूँ जब, तो मुझे बस उतना रहता है कि मैंने ये काम कंप्लीट किया है, दैट्स ऑल. उसके बाद मुझे आवर्स का कोई वो नहीं है. मैं क्वांटिटी नहीं देखती एक्चुअली, क्वालिटी देखती हूँ, क्वालिटी ऑफ वर्क, Correct. राइट? तो अगर आपका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा है तो फिर आवर्स डजेंट मैटर. आप कितने घंटे काम कर रहे हो डजेंट मैटर, Okay. राइट? आप अगर सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो इट मैटर. आप कितने घंटे काम कर रहे हो इट डजेंट मैटर, Correct. राइट? या कुछ ऐसा होता है कि आई हैव एक्चुअली हर्ड फ्रॉम पीपल ऑल्सो, दे से कि दे मेक टू डू लिस्ट बट दे ऑल्सो मेंशन इन फ्रंट ऑफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कंटेंट बनाने का एक काम है, ओके, तो उसके आगे से लगा देंगे कि हाँ दिस एक्चुअली टेक्स 1 आवर, सो 1 आवर उसके लिए डेडिकेट कर देंगे. सो इज दिस द वे यू ऑल्सो प्लान और यू जस्ट राइट इट इन द वे कि हाँ मुझे ऐसे करना है? I just write in a paper and just follow the to-do list. I don't prefer to make hours list and all. I don't think so it works. Okay. कभी कभी जल्दी भी हो जाएगा, कभी कभी इट टेक्स मोर टाइम. इट डिपेंड्स ऑन द वर्क एक्चुअली. Yeah, my goal is to just complete it, not counting the hours, how many hours I'm working. So because let's it doesn't work. in a like less time or more time. Our dedication is only to actually complete. Okay, great. Yeah, even in studying also, even in studying, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो it doesn't matter कि आप कितने घंटे बुक के सामने बैठ रहे हो, आप कितना पढ़ पा रहे हो वो ज़्यादा important है. Exactly. Okay, so Nancy, tell me कि you are a business and entrepreneurship, female entrepreneur, and what's your future plan? My future plan is to just promote and मेरी कंपनी अभी ये सब कुछ है कि मुझे कंपनी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है कि मुझे कंपनी बड़ी बनानी है. लाइक मैं छोटे ड्रीम्स नहीं देखती हूँ. मुझे लगता है कि हर किसी को बड़े ड्रीम देखने चाहिए, क्योंकि आप एज्यूम करो अगर आप बड़ा ड्रीम देखते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचते हो. अगर आप छोटे ड्रीम्स देखते हो तो आई डोंट थिंक सो को उतना काम करते हो, कि छोटे ड्रीम्स हर कोई देखता है. मतलब ज़्यादातर मैंने 90% ऑफ पीपल को देखा है कि उनके कोई ड्रीम्स ही नहीं होता, कोई एम्बिशन नहीं होता है. बट अगर आप बड़ी ड्रीम्स देखते हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करते हो लाइफ में. तो अभी मेरा फोकस और मेरा मेन गोल यही है कि मैं अपनी कंपनी को बढ़ाऊँ और मे बी ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बने वेबसाइट डेवलपमेंट की. तो अभी मेरा ये फ्यूचर गोल है बस. Okay. That's why I'm working So on it. basically, you are a person who actually believes in the long-term goal, who don't believe in short-term Yeah. goals, right? Yeah. Okay, great. Okay, so Nancy, you also hold somewhere around 2,000 plus followers, right? And there are so many people out there who are actually, आप पहली बार live आए हो, so obviously आपकी audience कितना wait कर रही होगी, like I can see the comments right now coming over here, and I can't comment because मेरा अभी session चल रहा है, but last में ज़रूर मैं reply करूँगी. And there are so many people out there who are actually looking to start their own business or something like that, and they're very hesitant to come in front and talk. So for those kind of people, what would be your piece of advice, like how to start?
Actually, I have already made a video on this business get out of your business fear. क्योंकि business fear सबके अंदर होता है. मुझे भी था fear क्योंकि मुझे लगता था कि business करना is like impossible. business करने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है. तो फिर मैंने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चला कि ऑनलाइन बिजनेस में इतने पैसे नहीं लगते. अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करो तो हाँ इन्वेस्टमेंट है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है और लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है. बट अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू जस्ट नीड अ वेबसाइट. You just need a website to start an online business, and you need to do digital marketing also. Digital marketing is a part of online business. तो अगर आपको बिजनेस फेयर से निकलना है तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है. पैसों की ज़रूरत पड़ती है बट उतनी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना आप सोचते हो. आपको सिर्फ अपना पैशन फॉलो करना है. आपका अगर आइडिया अच्छा है तो लोग आपकी सर्विस ज़रूर लेंगे. तो बिजनेस से डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप पैशन है, पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप पैशनेट हो कि नहीं. क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि बस देख रहे हैं यूट्यूब पे तो फिर उनको देख के लग रहा है कि हाँ अगर ये कर सकता है तो मैं भी. तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, अगर आपको सच में पैशन तो आपको खुद देखना होता है, आपके सेंटर पे देखना होता है कि आप क्या हो रियल में. अगर आप हो सकता है आप जॉब के लिए बनो, जॉब इज़ नॉट दैट बैड. जॉब भी अच्छा होता है. अगर कोई जॉब नहीं करेगा तो बिजनेस भी नहीं चलने वाला. तो जॉब की अलग वैल्यू है. या हाँ, तो जॉब की अलग वैल्यू, बिजनेस की अलग वैल्यू. बट आपको आइडेंटिफाई करें कि आप किसके लिए बने हो. आप जॉब के लिए बने हो या फिर बिजनेस के लिए बने हो, है ना. तो बोथ आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो बिजनेस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं. बिजनेस यू कैन डू बिजनेस. सो बेसिकली यू मीन टू से कि अगर आप पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस देन गो अहेड विद दैट. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट देन गो अहेड विद दैट. जस्ट डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, राइट? Okay, so for a person who actually has decided कि हाँ मुझे बिजनेस में ही जाना है, okay, but he's not understanding कि you know like कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, तो उसके लिए आपका क्या piece of advice है? हाँ, the exact road map I can say. राइट वे आई थिंक आपका कोई प्लान है तो आप मुझे बताओ, मैं उसके थ्रू आपको बताती हूँ क्या क्या. Like for example, you know, if there is a person who wants to start their career in digital marketing, okay, but you don't know कि मैं कहाँ से शुरू करूँ exact. हाँ, कि मेरा exact road map क्या होना चाहिए, how do I start, how do I go, etc. ओके, बिज़नेस के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए. कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बस बिज़नेस करने के निकल गए और आपके अंदर कोई स्किल नहीं है. तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस करना है तो आपको ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग खुद आनी चाहिए. अगर आप ये सोच लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बस एम्प्लॉय हायर कर लूँगी उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए आपको हाईली स्किल्ड होना चाहिए. और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि आप सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग. मैंने भी सीखा है. मैंने गूगल डिजिटल गैराज का लिया था तो मुझे इसमें सर्टिफिकेशन भी मिला है डिजिटल मार्केटिंग के लिए. तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन, और मैंने यूडेमी का भी कोर्स लिया था तो उसमें ही मुझे सर्टिफिकेशन मिला है डिजिटल मार्केटिंग का. तो इसी तरह से आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करियर बनाना चाहते हो तो फिर आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज ले सकते हो. ऑफलाइन भी लोग पढ़ाते हैं बट आई प्रेफर ऑनलाइन मोर. या सो आई थिंक स्किल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट key factor that play important role in any business. Basically if you want to start any business, right? Okay. Yeah, so if you want to start a career in digital marketing, first of all you have to learn digital marketing. If you have learned everything in digital marketing, then you have to think about to start a business in that field. That's the thing. Okay, great. So you said you follow Gary Vee, right? So like Gary Vee, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको आप follow करते हो, you know, who would inspire you, motivate you. So you know, just you know, if you can tell the audience कि you know, who are those people who motivate you, inspire you, etc. in your journey. Okay, whom I am inspired from. Okay, the number one is Sandeep Maheshwari. Obviously, Sandeep Maheshwari सबके favorite है और मेरी भी favorite है. I would say कि he is my favorite too. अगर मेरे से ये पूछा जाता तो मेरा भी सबसे पहला आंसर वही होता. Sandeep Maheshwari. So I used to watch every video. I think every video मैंने हर सारे वीडियोस उनके देख लिए हैं. And the second is Marina Magilko. It's from she's from Russia and she's a big entrepreneur. I think उसका क्या नाम था, लिंग्वा मरीना इज़ यूट्यूब चैनल है इसका. ठीक है, तो ये मेरे इसलिए मेरी इंस्पिरेशन है क्योंकि ये इसने स्टार्ट किया सिलिकॉन वैली में अपना स्टार्टअप. तो ये मेरी सेकंड नंबर पे ये है मेरी इंस्पिरेशन, क्योंकि मैंने इसका देखा तो मुझे पता चला अच्छा सिलिकॉन वैली में इतने सारे स्टार्टअप्स होते हैं तो मेरा भी मन करता है सिलिकॉन वैली में जाने का. तो मैंने इससे भी थोड़ी बहुत इंस्पायर हुई हूँ. और थर्ड पे राहुल भटनागर हैं और फिर गैरी वी भी हैं. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जिससे मैं इंस्पायर हुई हूँ. काफ़ी सारे लोग हैं इससे. फाइन, ठीक है.
So I know Yeah. you read a lot of books, okay, and it's not hidden Yeah. from anyone. You read a lot of books, so if you can give some book recommendations to the audience, कौन सी होगी? Book recommendation, always I prefer, my favorite book is The Personal MBA. It's my favorite. And the second book is 4 Hour Work Week. मैंने ये बुक पढ़ी है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाली बुक कि आप कैसे 4 आवर वर्क वीक, आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। मतलब आपको इनिशियल डेज में तो ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा, बट एक बार आपने बिजनेस सेटअप कर लिया तो कैसे आप उसे ऑटोमेट कर सकते हो। तो 4 आवर वर्क वीक इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड रिच डैड पुअर डैड, ये मेरी फर्स्ट बुक थी जब मैंने बिजनेस के बारे में लर्न करना शुरू किया था। रिच डैड पुअर डैड आपने ही पढ़ा होगा। रिच डैड पुअर डैड या मेरा सबसे फेवरेट है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस भी हाँ मैंने पढ़ा है। एंड राइट नाउ टू हाँ बी ऑनेस्ट मेरा 4 आवर वर्क वीक ही चल रहा है अभी। मैं तो वही अभी शुरू जस्ट की थी लास्ट वीक, ओके। एंड आई एम जस्ट आई जस्ट स्टार्टेड, मे बी आई एम इन आपको द कैसा सेकंड लगा? चैप्टर। मैं अभी सेकंड चैप्टर में हूँ। आई लव इट। Yeah, me too. So these three books and the Lean Startup also. You should also read the Lean Startup. It's ओके। also a very amazing book. Yeah, and Zero to One is also amazing book for any startup ideas. Zero to One is very good. And बुक्स तो बहुत हैं, दिन पूरा दिन बीत जाएगा। बहुत सारी Okay, बुक्स I हैं। have. हेलो सुष्मिता। So Nancy, there is a question. What are the difficulties you are facing in marketing in lockdown? What are the difficulties? I think offline marketing, because ऑनलाइन मार्केटिंग तो हम घर बैठे भी कर सकते हो, बट मैं ऑफलाइन मार्केटिंग में थोड़ा सा बिलीव करती हूँ कि अगर आपको थोड़ा, अगर लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना, थोड़ा ऑफलाइन मार्केटिंग हमको करना पड़ता है। तो जैसे हम क्लाइंट से जाकर मिलते थे पहले, लॉकडाउन के पहले, तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं अभी। तो आई थिंक दिस इज़ मिसिंग। लॉकडाउन के बाद मे बी हमें फिर से स्टार्ट कर पाऊँ। Okay. Okay. So there's a second question which has come from Mahesh. He says, ki, "Hi Nancy, how to get traffic to my blog?" Maybe it's like that. For blog, you need to do SEO. I am currently learning SEO because I am not that good in SEO, क्योंकि ब्लॉग पे अगर आपको कोई ट्रैफिक लाना है तो आपको सर्च इंजन मार्केटिंग, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से सीखना ही पड़ेगा, जो कि आप नील पटेल से सीख सकते हो। और नील पटेल के लिए आप उनका यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ रियली अमेजिंग। Okay, great. So Vinay, hi Vinay. Vinay says, ki, some tips about sales. सेल्स सेल्स के लिए तो करेंटली मैंने, पता है, मैंने सेल्स ज़्यादा की नहीं है, मैंने ज़्यादातर मार्केटिंग ही की है। सेल्स मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। अभी मैंने सोचा कि मैं सेल्स भी करूँ, तो मैं व्हाट्सएप बिज़नेस को मैंने टारगेट किया कि मैं व्हाट्सएप बिज़नेस से सेल्स करने की कोशिश करूँगी। तो सेल्स में यही होता है कि आपका पहले ये होता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, राइट। आप अगर किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो तो आप किस तरह से बात कर रहे हो कि आप पहले आपको पता है कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं सेल्स में, लोग ये गलती करते हैं, हाँ, तो ये करते हैं लोग कि अपने प्रोडक्ट के बारे में से बात करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी है। आपको पहले आपके प्रोडक्ट, आपके कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। आपके कस्टमर की जो नीड है उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट की बात करनी है। तो सेल्स में ये आपका थंब रूल है कि आप पहले अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं, पहले आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट बताओ, तो ही आपकी सेल्स फिर अच्छे से हो पाती है। Okay, fine. I hope Vinay you got the answer. And I have also learned so many things from Vinay. Thanks, Vinay. okay, there is a question from Vaibhav who says, how to find clients if you don't have any experience as freelance with Please a particular go skill. and watch my video. Please go and watch. मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई, कौन सा 8 मिनट वीडियो की है, वीडियो कौन सा बनाई वीडियो मैंने। ये भी बता दीजिए। How to find your first client on YouTube. Link in my bio. Okay, great. Okay, great. So how do you make your career in blogging? Sorry, किसी का question था। Okay. How to be more Blogging. confident in business stuff? Okay. Yeah, what's the question? How to be more confident in business stuff? हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट तभी करते हो, मतलब कॉन्फिडेंट तभी होते हो आप जब आपको एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, बट कॉन्फिडेंस इज़ लाइक समथिंग रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। आप जितना एक्सपीरियंस होगा उतना आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। बट हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डर डर के काम करो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इट्स गुड, बट वो कॉन्फिडेंस, उस लेवल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप एक्सपीरियंस आपके पास होता है। तो एक्सपीरियंस रियली मैटर्स इन कॉन्फिडेंस।
और अपने प्रोडक्ट पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि या माय प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट, Yeah, तो yeah, ऑटोमेटिकली द स्क्रिप्ट आल्सो yeah, कम्स। sure. Okay, Succeed 10x says कि what exactly is your business model, Nancy? माई बिजनेस मॉडल इज समवॉट लाइक फाइवर एंड अपवर्क। मैं बोलना तो नहीं चाहती कि फाइवर और अपवर्क जैसा है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि फाइवर और अपवर्क में आप जाते हो तो फ्रीलांस हायर करने की बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद प्रॉब्लम सॉल्व मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि मैं ये सॉल्व कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे अगर प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे तो आपको सिंपली बस एक फ्रीलांसर चूज़ करना है, पे करना है, और आपको उसका टेलीग्राम आईडी मिलेगा। टेलीग्राम आईडी पे आप बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, आपको जो भी उससे जो भी आपका वो है प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात कर सकते हो। तो अगर आप ये कहोगे कि अब मुझे को पे करना पड़ेगा, पे करने के बाद में मुझे मिलेगा कॉन्टैक्ट, तो ऐसा नहीं। आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाओ। आप पहले वेबसाइट पे जाते हो तो पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म भरो, आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स जो भी है आपका शेयर करो, उसके बाद आप पे करो, ठीक है। उसके बाद इससे ये हुआ कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पहले डिस्कस हो जाएगा हमारे साथ कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, राइट। तो ये मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो मुझे ये सॉल्व करनी चाहिए। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम लोगों को भी लगता होगा, लोगों ने फेस की होगी, इसलिए मैंने ये वेबसाइट स्टार्ट की है। ओके, सो बेसिकली रिक्वायरमेंट समझना एंड ऑल दैट। ओके, या सो वैभव का क्वेश्चन है कि द वीडियो विच यू वर टेलिंग कि यूट्यूब पे देखना, तो ही इज आस्किंग कि इज दैट वीडियो स्पेसिफिकली अबाउट फाइंडिंग मार्केटिंग क्लाइंट्स और एनी सर्विस इन जनरल? इट्स अबाउट मार्केटिंग मे बी यू कैन से, बट इट्स अबाउट माई एक्सपीरियंस। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी। मैंने सिर्फ एक समय ऑनेस्टली बताऊँगी कि मुझे सिर्फ 1 ही साल हुआ है, तो 1 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है मैंने उस वीडियो में डाला है ना। तो अगर आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, मैंने जिस तरह से क्लाइंट्स को अप्रोच किया है वो मैंने बेसिकली बताया उस वीडियो में। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग वीडियो है, 8 मिनट का वीडियो है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए इसके क्लाइंट्स को हायर करने के लिए, कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, क्लाइंट्स को बेसिकली अप्रोच कैसे करते हैं, मैंने वो बताया है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कर सकते हो। डिजिटली कुमार पूछ रहे हैं कि आपका कोई ई बुक है क्या? ई बुक तो नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने ई बुक का गिव अवे किया था, बट वो अब ओवर हो चुका है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने भी कुछ दिन पहले ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्टीज़ कोर्स भी लॉन्च किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन सिर्फ कुछ दिन का रखती हूँ। अगर आपको करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो उस ई बुक के लिए, मैं आपको वो ई बुक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, then if everyone is done with the questions, then we can end. So Nancy, tell me, like, it was your first live, and how was it? How are you feeling? And etc. आई फेल्ट समवॉट लाइक एक्साइटिंग बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में ही थी जब मैंने फर्स्ट क्लाइंट को अप्रोच किया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा फील आ रहा था अंदर से कि हाँ अब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब मेरे फर्स्ट क्लाइंट से मिला, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो क्लाइंट भी अच्छे थे, तो उन्होंने भी समझा कि अभी हम स्टूडेंट हैं, तो अभी हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो क्लाइंट भी बहुत अच्छे थे, और वो क्लाइंट अभी भी मेरे साथ हैं, अभी भी हम उनका काम करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो इट वॉज अमेजिंग। I felt little bit nervous, but it was more like exciting, and it was amazing. Yeah. So Abhishek, it's actually lastly, बता सकते हैं आप कि आपको लाइफ में आपके टूर एंड फिर शो कैसा लगा? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपने मुझे फीचर किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लिटरली मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं कुछ कर रही हूँ अपनी लाइफ में। No, you are doing really मुझे बहुत अच्छा awesome. लगा। I wish you all the very क्योंकि best. थैंक यू सो मच, एंड सेम टू यू। यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी नाइस, एंड समडे मैं आपको भी फीचर करूँगी अपने शो में, लाइव सेशन में। I would be really happy. या मी टू। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका शो। आप इस तरह कंटिन्यू करो और लोगों से लाइव सेशन करो। और मुझे अच्छा लगा, मतलब मैंने आपको शेयर किया तो लोग आपसे मतलब शेयर करते हैं, तो लोगों के आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। Exactly. तो उससे बेसिकली नॉलेज बढ़ती है कि हमको लाइफ में क्या करना है, लोग क्या कर रहे हैं, उससे जानकर अच्छा लगता है। तो आप कंटिन्यू करो, आपका काम बहुत अच्छा है। Thank you so much. It means a lot to me. Okay, fine. Then we can end the session. Thank you so much for actually Thank coming, you. taking some time, and coming to my live session, and making it as an awesome. So I wish you all Thank the you very so best. And Mahesh, मेरा जो एपिसोड है वो हमेशा हर संडे आता है. Okay. So if you want to know about the next live session, तो मे बी वो आने वाला है नेक्स्ट संडे. So basically मैं संडे फ्री रहती हूँ, तो संडे मेरा सेशन कंडक्ट होता है.
Okay, so Nancy, all the very best. Bye bye. Take care. Okay, thank you so much. Bye bye.